یقیناً خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بلندیوں پر رہنے والا خدا ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ بچانے اور چھڑانے والا باپ ہے، وہ فدیہ دینے والا باپ ہے، وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچاتا اور چھڑاتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، قوی ہاتھ رکھتا ہے۔ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو برکت نہ دے سکے۔ یقیناً خداوند اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی رہنمائی کے سبب سے خدا کے لوگ خدا کے کلام کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ آسمانی باپ، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگ 100 گنا پھل پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ تیرا رول قدس خداوند مانگ لیتا ہوں، تیرا جلال مانگ لیتا ہوں، تیرا عبر مانگ لیتا ہوں، تیری حضوری کو مانگ لیتا ہوں، تیری معموری کو مانگ لیتا ہوں۔ اپنے جلال کو انڈھیل دیجئے، اپنے مسا کو انڈھیل دیجئے آسمانی باپ، تاکہ تیرے جلال کو اور تیرے مسا کو حاصل کرنے والا بنے۔ خداوند یسوع رحم کر، خداوند یسوع کرم کر، تیرا شکر، تیری تعریف ہو یسوع کے نام سے، آمین۔ سو ہم نے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کی ہے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم نے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے نجات کے متعلق سیکھیں گے۔ آپ نے اپنی لائف کے اندر بہت مرتبہ خداوند کے اس مقدس پاک کلام کی تلاوت کی ہوگی اور بہت سے خادموں سے سنا بھی ہوگا کہ نجات کیا ہے، لیکن جب بھی ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کو سنتے ہیں، ایک نیا سبق ہماری زندگی میں ملتا ہے، ایک نئی بیداری ملتی ہے، ایک نیا جوش ملتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا باپ ہے، وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہمیشہ اس کی طرف لگے رہیں۔ سو آج ہم نجات کے متعلق سیکھیں گے کہ نجات کیا ہے، اور اس حوالے کے اندر نجات کا ذکر یسوع ناصری نے کیوں کیا۔ سو نجات بائبل مقدس میں نجات کا جو الفاظ ہے سیلویشن، یہ 244 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، 244 244 مرتبہ نجات کا جو ورڈ ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور نجات کے جو لفظی معنی ہیں آپ کے پاس اسکرین آ رہی ہوگی، لغوی معنی مخلصی کے ہیں، رہائی کے ہیں، چھٹکارا کے ہیں اور آزادی کے ہیں۔ یہ نجات کے معنی ہیں۔ آپ کسی چیز سے مخلصی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مخلصی ہو جاتی ہے، یا رہائی ہو جاتی ہے آپ کو، یا چھٹکارا ہو جاتا ہے، یا آزادی مل جاتی ہے، اس کا مطلب آپ کو اس چیز سے رہائی مل چکی ہے، آپ اس چیز سے آزاد ہو چکے ہو۔ اب نجات ہے کیا؟ نجات سادگوں کی راگنی ہے۔ اگر زبور 118 اس کی ہم 15 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے نجات سادگوں کی راگنی ہے۔ نجات ایک علم ہے، نجات ایک راہ ہے، نجات ایک کھود ہے۔ کھود جو جنگ کے دوران اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑتے اور سر کے اوپر ایک کیپ سی پہنتے، اس کو کھود کہا جاتا ہے، جس سے سر پر چوٹ نہیں لگتی۔ وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نجات ایک کھود ہے، نجات ایک میراث ہے۔ اب بائبل مقدس نجات کے متعلق ہمیں بہت کچھ سکھاتی اور بتاتی ہے۔ اب پرانے عہد نامہ کے اندر بھی نجات کے متعلق بتایا گیا ہے کہ نجات پرانے عہد نامہ کے اندر کیسے حاصل کی جاتی تھی۔ قید سے رہائی ہوتی تھی، دشمنوں سے چھٹکارا ہوتا تھا، دکھوں سے نجات ملتی، یا غلامی سے نجات ملتی، یا کسی بیماری سے نجات مل جاتی۔ اب جب نئے عہد نامہ کی طرف جب ہم آتے ہیں، یہ تو تھا ہمارا پاسٹ۔ اب ہم اگر نئے عہد نامہ کی طرف آتے ہیں تو نئے عہد نامہ کے اندر نجات کے متعلق خداوند خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نجات کا مطلب جو آپ سمجھ چکے ہیں، مخلصی کے ہیں، رہائی کے ہیں، چھٹکارا کے ہیں، آزادی کے ہیں۔ نئے عہد نامہ کے اندر خدا نجات کے متعلق کیا کہتا ہے؟ نجات گناہوں سے نجات ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہمارا آج کا یہی ٹاپک ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب ایک زکی نام کا ایک شخص ہے جو کہ جس کا قد بہت ہی چھوٹا ہے۔ سنڈے سکولز میں ہم بچوں کو اکثر اوقات یہ کہانی ضرور بتایا کرتے ہیں، اور بچوں کو یہ کہانی یاد بھی ہوتی ہے۔
उसी तरह से हमें भी ये कहानी याद है कि ज़कई नाम का एक शख्स था जो बहुत ही छोटे कद का होता है, और उसके दिल में एक आस होती है, उसके दिल में एक तमन्ना होती है कि मैं यस्सु को देखूंगा। क्या करूंगा? मैं यस्सु को देखूंगा, या मैं यस्सु को देखना चाहता हूं। उसके जहन में, उसके ख्यालात में ये होता है कि यस्सु जो बड़े बड़े मौजात करता है, जिसके वसीला से लंगड़े चलते हैं, जिसके वसीला से बहरे सुनते हैं, जिसके वसीला से गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, बदरू गिरफ्ता आजाद हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, मैं उस यस्सु को देखना चाहता हूं। हालेलुया। वो उस यस्सु को देखने की आस में होता है, वो उस यस्सु को देखने की उसके अंदर तड़प होती है। वो यस्सु को देखने के लिए एक गुल्लड़ के दरख्त पर चढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और भीड़ इतनी होती है कि वो यस्सु को देख नहीं पाता। हो सकता है उसने पहले बहुत दफा कोशिश की हो सकता है उसने बहुत, वो पहले भी नाकाम हो गया हो, लेकिन अब वो सोचता है कि यस्सु नासरी इस रास्ते से आएगा, मैं इस दरख्त पर चढ़कर यस्सु को देख लूंगा, या मैं देखकर यस्सु को खुशी महसूस करूंगा। वो उस गुल्लड़ के दरख्त पर चढ़ जाता है, और जब यस्सु मसीह वहां से गुजरते हैं तो क्या होता है? मेरा और आपका खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला बाप है। यहोवा यरी है, कुल कायनात को बनाने वाला बाप है। उसने अपने बेटे को इस जमीन पर भेज दिया ताकि हमारे गुनाहों की आजादी हो जाए, हमारे गुनाहों की मखलसी हो जाए, हम गुनाहों से निजात को हासिल कर लें। इन लोगों के लिए खुदावंद खुदा इस दुनिया में आए। अब यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह से कहते हैं, अगर हम छठी आयत में पढ़ते हैं, वो जल्द उतर कर उस खुशी से अपने घर ले गया। पांचवी आयत से पढ़ते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए जकई, कहता है ए जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। मेरे जीजो, जकई जो गुनाहगार शख्स है, जकई जो खुदा को याद भी नहीं करता, उसके दिल में तड़प थी। उसने यस्सु मसीह के बारे में सुना था। हम जो हमारे पास कलाम मुकद्दस है, हम बचपन से लेकर आज तक, अभी तक खुदा के कलाम को सुनते आ रहे हैं, यीशु मसीह के मौजे पढ़ते आ रहे हैं। खादमों के वसीला से बहुत बहुत बड़े बड़े और अजीब अजीब मौजे होते हैं। हम तब भी हम खुदा पर यकीन नहीं करते, खुदा को अपने घर लेकर आने की कोशिश नहीं करते। ये गुनाहगार शख्स, इसको मालूम था कि मैं यस्सु यहां से गुजरेगा, मैं यस्सु को देख लूंगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि यस्सु मुझे ही कहेगा कि मुझे आज तेरे घर जाना है। यीशु मसीह ने उसे कहा, जल्द नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर जाना है। लोग वहां पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो गुनाहगार शख्स है। और यीशु मसीह इसके घर जा उतरा है, और जकई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ए खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूं। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है। मेरे अजीजों, निजात हमारे लिए एक बहुत मायने रखती है। निजात के बगैर हमारी जिंदगी खाली है। अब यहां पर हम खोई हुई इब्ने आदम, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। अब ये खोए हुए कौन है? ये इब्ने आदम है। जब खुदा ने आदम को बनाया, उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया तो वो जीती जान हुआ। खुदा ने आदम को एक हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, बेरोक टोक, तुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, तुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना, जिस दिन तूने खाया तू मारा। आदम वो फल खा लेता है, नाफरमानी करता है, नाफरमानी करता है, और जब वो नाफरमानी कर चुका होता है, वो अपने आप को नंगा फील करता है कि मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। वो अपने आप को गुनाहगार फील करता है और अपने आप को पत्तों में छुपा लेता है। अब जब लिखा है, जब शाम का ठंडा वक्त होता तो यस्सु खुदा आदम से मिलने के लिए जब आया करते तो उसको पुकार कर कहते, आदम तू कहां है? आदम कहता है, मैं डरा और मैंने अपने आप को छुपाया। खुदा कहता है, क्या तूने गुनाह किया? क्या तूने उस फल को खाया जिसका खाने का मैंने तुझे मना किया था? वो कहता है, मुझे हवा ने खिलाया। ये वो खोई हुई भेड़ें हैं जो शुरू से खो चुकी थी। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से
محروم हैं। हम सब गुनाह करते हैं, हम सब ने गुनाह किया है और हम सब गुनाह खुदा के जलाल से महरूम है। सिर्फ एक शख्स है जो खुदा का बेटा है, जो खुदा है, जो इस जमीन पर आया, जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित करता है। वो बेगुनाह था, और जो बेगुनाह होता है उसी के पास निजात है। जो बेगुनाह है उसी को खुदा ने बेटा बनाकर जमीन पर भेज दिया है। जो बेगुनाह है वही हमारा खुदा है। अब लिखा है निजात पाने के लिए यीशु मसीह का होना बेहद जरूरी है। अब जब यीशु मसीह की पैदाइश होने लगी तो कहा तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब निजात का जो दारोमदार है जब यीशु मसीह की पैदाइश से पहले से चलता आ रहा है। यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे तो निजात की जो पेशन गोइयां थी, जो निजात के हवाला जात थे, वो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलते हैं। अब बात यह है कि हमने निजात को कैसे हासिल करना है, हम निजात की तरफ कैसे जा सकते हैं। क्या हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है? जी हाँ, ऐसा ही खुदा का कलाम हमें कहता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। निजात सिर्फ यस्सु नाम में है, यस्सु के नाम में ही सिर्फ निजात पाई जाती है। दुनिया में कितने कितने लोग आए, यस्सु के शागिर्द आए, नबी आए, बहुत सारे लोग आए। निजात सिर्फ और सिर्फ एक ही के वसीला से है, और मेरा और आपका खुदा है, और वो खुदा यस्सु नासरी है जिसके वसीला से निजात हमें मिलती है। अब निजात को कैसे पाना है? अब यहाँ पर लिखा है तितुस की किताब उसका 3 बाब और उसकी 4 और 5 आयत। अगर हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लिखा है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और उसके साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। अब यहाँ पर जिक्र मिलता है कि हम अपने आप को अगर साफ कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हमारे खुदा गुनाहों को माफ कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको निजात हासिल करने के लिए, इंसान को निजात हासिल करने के लिए नई पैदाइश का होना ज़रूरी है। और नई पैदाइश क्या है वो आगे हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हम खुदा के खादम हैं, हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, उसके नाम की मदसराई करते हैं, या हम खुदा के नेक लोग हैं, हम रोज़ाना बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक पेश करते हैं, लोगों को हम पैसे देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को खाना मुहैया करते हैं, दय यकिया टाइम पर देते हैं, चंदे टाइम पर देते हैं। हमें खुदावंद बरकत देगा, ज़रूर आपको खुदा बरकत देगा, लेकिन आपकी रास्तबाजी के काम है, ये आपकी रास्तबाजी के काम है, ये इंसान की रास्तबाजी के काम है कि वो इंसान अच्छे काम करता है। अब रास्तबाजी के कामों के वसीला से हमें निजात नहीं मिल सकती, उसके लिए रूह कुद्दस का होना ज़रूरी है, उसके लिए नई पैदाइश का होना ज़रूरी है। और नई पैदाइश क्या है वो आगे हम खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे कि नई पैदाइश क्या है, निजात को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, निजात हम कैसे ले सकते हैं। जब तक इंसान अपने गुनाहों का इकरार ना करे, जब तक इंसान खुदा के आगे झुक ना जाए, जब तक खुदा अपने आप को खुदा के हजूर ना ले आए, जब तक खुद इंसान अपने आप को खुदा के आगे झुका ना दे, तब तक इंसान अपने गुनाहों की मखलसी हासिल नहीं कर सकता। पुराने अहदनामा के अंदर हर गुनाह की एक ना एक कुर्बानी थी। आपने अगर ये गुनाह कर दिया है तो आपको ये कुर्बानी करनी है, आपने बड़ा गुनाह कर दिया है तो आपको बड़ी कुर्बानी करनी है। नए अहदनामा में ऐसा कुछ नहीं है। नए अहदनामा में गुनाहों से मखलसी मिलती है, गुनाहों से निजात मिलती है, छुटकारा मिल जाता है।
जब हम खुदा को अपना लेते हैं, जब हम यस्सु नासरी को अपना लेते हैं, जब हम यस्सु नासरी के नाम को अपने दिल में बसा लेते हैं, तब भी मिलता है। लिखा है सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। क्या पाएगा? निजात पाएगा। मरकस की किताब उसका 16वां बाप और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है सारी दुनिया के सामने, एक मुल्क में नहीं, दो मुल्क में नहीं, सारी दुनिया के सामने जाकर अंजील की मुनादी करनी है। दुनिया भर के खादमीन, ये बाइबल में से मैं बता रहा हूं आपको, खुदा उनका कलाम ये कहता है निजात कैसे मिलनी है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मरकस रसूल की अंजील उसका 16वां बाप और उसकी 15वीं और 16वीं आयत अगर हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए, ईमान किस पर लाना है? यस्सु पर लाना है कि यस्सु ही खुदा का बेटा है, यस्सु ही खुदा का बेटा है। खुदा ने आसमान से अपने बेटे को भेजा है। दुनिया में गुनाह बहुत बढ़ चुका था, दुनिया में बहुत बदी थी, बहुत गुनाह था। खुदा ने अपने बेटा को भेजा ताकि उसका बेटा सारे गुनाहों के लिए, सारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद कर, अपने ऊपर लाद कर कुर्बान हो जाए, ताकि दुनिया के गुनाह खत्म कर दिए जाएं। मेरा और आपका खुदा बादशाहों का बादशाह है, बुलंदियों पर रहने वाला बाप है, हय्यल कयूम है, बचाने और छुड़ाने वाला बाप है, फिदिया देने वाला बाप है, रहम कर देने वाला बाप है, करम करने वाला बाप है, सदरक मिसक और अब्दुल को आग की भट्टी में से निकालने वाला बाप है, दानियल को शेरों की गाड़ से बचाने वाला बाप है, बहरे कुलजम को दो हिस्सों में तब्दील कर देने वाला बाप है। उसने अपने बेटा को जमीन पर भेज दिया ताकि उसका बेटा यस्सु नासरी, जिसके वसीला से हम निजात को हासिल कर सकते हैं, निजात को हासिल करें और उसके नाम को जलाल देने वाले हों। प्रेज गॉड। सो लिखा है निजात पाने के लिए यीशु मसीह के नाम का लेना जरूरी है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, किसी दूसरे के वसीला से नहीं। यीशु के 12 शागिर्द थे, उनके वसीला से भी निजात नहीं है। उन्होंने एक किताब लिखी, नया ऐदनामा पूरा लिखा, उनके वसीला से भी निजात नहीं है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। इमाल की किताब उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत आप खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इमाल की किताब 22वां बाब अगर 16वीं आयत देखते हैं तो लिखा है कि अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। ये किसके बारे में लिखा है? ये पौलुस रसूल के बारे में लिखा है, जो यीशु के शागिर्दों को मारता था, उन पर जुल्म करता था। खुदा का रूह, यीशु का रूह उसके सामने आ जाता है और कहता तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस उससे कहता तू कौन है? मैं यीशु नासरी हूं। वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। फिर वो नाबीना हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आता। फिर वो यीशु के शागिर्द के पास जाता है, यीशु उसको सब कुछ बताता है, तू वहां जा, आइए मेरे साथ निकालिए। माल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत। चाहता हूं जल्दी जल्दी मैं इसको पढ़ूं क्योंकि वक्त बहुत कम है। खुदा का कलाम जितना भी पेश किया जाए उतना ही कम है। इमाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत, 12वीं आयत से खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में पढ़ेंगे। और हननिया नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल, फिर भी ना हो। उसी घड़ी भी ना होकर मैंने उसको देखा और उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको उसके लिए मुकर्रर किया है कि उसकी मर्जी को जाने और उसकी रास्तबाजी को देखे और उसके मुंह की आवाज़ सुने। अब कोई काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करने के लिए होते हैं। यीशु अल मसीह ने पौलुस रसूल के साथ ऐसा क्यों किया और पौलुस रसूल क्यों यीशु अल मसीह की तरफ आया? ताकि यीशु अल मसीह के नाम को जलाल मिले और यीशु अल मसीह के काम का जो है वो पौलुस रसूल के जरिए से आगाज हो सके। अब यीशु मसीह ने जब इसको नाबीना कर दिया, जब ये बीना हो गया, तो हननिया जो यीशु का शागिर्द था, यीशु को देखता था, उसके साथ साथ रहता था, वो कहता अब देर क्यों करता है, अब देर क्यों करता है, अपने गुनाहों को धो ले। अब
بات یہ ہے کہ نجات کی راہ کون بتاتے ہیں؟ جواب یسوع المسیح کے رسول، یسوع کے خادمین جو کلام کو پڑھتے ہیں۔ ہم خدا کے خادم ضرور ہیں، لیکن ہم خدا کے اگر کلام پر عمل کرنے لگ جائیں تو یقین جانیں خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے وسیلہ سے استعمال کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں خادموں کے متعلق لکھا ہے، بزرگوں کے متعلق لکھا ہے کہ تم اپنی کلیسیا کے بزرگ کے پاس جاؤ اور جو بزرگ ایمان سے دعا کرے گا، لوگ کلیسیا شفا پائیں گے۔ اب ایمان ہمارے خادموں میں بہت کم ہے۔ جب ایمان کی بات آ جاتی ہے تو ایمان کے ساتھ آپ کی دعائیہ زندگی بھی آ جاتی ہے۔ وہی خادم دلیری کے ساتھ خدا کی کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی زندگی میں دعا ہوتی ہے۔ جو دعا گو ہوتے ہیں، جو دعا گو نہیں ہوتے، وہ کلیسیا کے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یسوع کا شاگرد دعائیں کرتے رہتے، جب وہ دعائیں کرتے تو غیر زبانیں ان پر اترتی، وہ غیر زبانیں بولتے، وہ نبوت کرتے، لوگ ان کے وسیلہ سے شفاؤں کو حاصل کرتے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نجات کو حاصل نہیں کرتے، ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ ہمیں جب بپتسمے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں جب روح القدس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ہم ایک بدعت سمجھتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدا کا کلام جو لا تبدیل کلام ہے، جس کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کرتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمیں رہائی ملی ہے، ہم اس کلام کو بھول جاتے ہیں۔ ہم توبہ کر کے بپتسمے کی طرف راغب نہیں ہوتے، اور توبہ کرنے کی ضرورت کب پہنچتی ہے؟ جب ہم گناہگار ہو جائیں، جب ہم گناہگار ہو جاتے ہیں تب ہماری توبہ کی نوبت پہنچتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا ایک دوست تھا اور وہ خدا میں نہیں تھا۔ جب وہ خدا میں آیا تو اس نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں بپتسمہ لوں تاکہ میں خدا کے روح کو حاصل کروں۔ چند سالوں پہلے اس نے یسوع نام کا بپتسمہ لیا اور خداون نے اپنی غیر زبانیں اس پر اتاری۔ وہ اب زیادہ تر دعا میں رہتا ہے، خدمت، وہ بھی ایک سٹاف نرس ہے، خدمت نہیں کرتا لیکن اپنی زندگی، اپنی دعائیہ کو زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، روزے رکھتا ہے، خداون نے اس کو بڑی برکت دی ہے۔ آپ بھی خدا دیکھے، خدا نے ہر کسی کو خدا خادم نہیں بناتا، ہر کسی کو خدا پاسٹر، ایلڈر، ڈیکن، مبشر نہیں بناتا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو مبشر بنایا ہے تو آپ اپنی مرضی سے نہیں بنے، آپ کو خدا نے بنایا ہے۔ آپ کو پادری بنایا ہے تو آپ کو خدا نے بنایا ہے، استاد بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے۔ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ خدا کے اچھے پیروکار بن جائیں، آپ خدا کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، آپ خدا کے اچھے بچے بن کر خدا کے نام کو جلال دیں۔ آپ نجات کو حاصل کریں۔ نجات صرف یسوع نام میں ہے، اور نجات کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، جب تک ہم نئی پیدائش کو حاصل نہیں کرتے۔ اور نئی پیدائش کے لیے بپتسمہ ہے۔ جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے، ہم نجات کو حاصل نہیں کرتے۔ خداوند یسوع ناصری آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ جے مسیح دی۔